Good afternoon, all. So, welcoming all. Starting today's lecture is on anemia in pregnancy, and if the time permits, I had also made a little bit slide of PIH also. That is, though not included in the course module, but I had included at least medicine part, antihypertensive drug. You should know, then that would be helpful for you. So, I had also tried to cover PIH in pregnancy also. So let's begin. Anemia in pregnancy. It's a very common. So it's a worth to discuss. When termed anemia, grossly, there are different kinds of definitions available. Like in first and third trimester, HB should be more than 11 gram. In second trimester, ideally it should be more than 10.5 gram. Ideally, definition is like that. नॉर्मल कितना होना चाहिए? तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन शुड बी मोर देन 11 ग्राम and second trimester में it should be more than 10.5 gram. But grossly, when will you define the anemia? When hemoglobin is less than 10 gram per dl, termed as anemia in pregnancy. 10 से नीचे है तो it is a confirmed case of anemia in pregnancy. Classification. ऐसे तो various types of classification are there according to their nature, according to their condition, but mainly we are discussing here physiological anemia in pregnancy and the pathological thing. Physiological anemia, as we already discussed in the physiological changes during pregnancy, because what happens, there is a pregnancy is a hemodilution condition. Means what happens? Blood volume and plasma volume expand, but RBC and hemoglobin remain same. So what happens? Like you make a one glass of nimbu sharbat with proper amount of sugar and salt and lemon. But if you add more water in that, then what happens? Taste will be altered because of dilution. So same thing happens in the pregnancy. Body is remain same. Hemoglobin remains same. But increase in blood volume and the plasma volume. So hemodilution leads to the fall in the HB level. So physiological anemia in pregnancy is very common. Pathological, due to deficiency. First is iron deficiency anemia. Due to deficiency of iron is termed as iron deficiency anemia. 70% of the ladies in India are suffered due to iron deficiency anemia, whether in pregnancy, whether in non-pregnant state. Folic acid deficiency, vitamin B12 deficiency, protein deficiency. It also due to bleeding in pregnancy. Severe bleeding in first early pregnancy, like after abortion, after taking MTP pill in certain cases, in incomplete abortion, there are development of anemia are common. Or it could be due to antepartum hemorrhage, like abruptio placenta and placenta previa. पोस्ट डिलीवरी में पीपीएच की वजह से भी होता है. और हेरिडिटरी हिमोग्लोबिनोपैथीज, थैलेसेमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो दे ऑल लीड्स टू द एनीमिया इन प्रेगनेंसी. सो फिजियोलॉजिकल एनीमिया इज मेनली एज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हिमोडाइल्यूशन एंड द आयन बैलेंस. सो एक तो हिमोडाइल्यूशन होता है और प्री प्रेग्नेंट स्टेट का आयन भी कम होता है, तो इट डेवलप्स एज एनीमिया. When you called physiological anemia in pregnancy, now again you have to differentiate whether it is physiological anemia or whether it is pathological anemia. What is physiological anemia? HB should be more than or equal to 10 gram. 10 ग्राम से ज्यादा ही HB होगा.
So not below 10 is pathological. Physiological in anemia means at least 10 HB should be there, RBC in a proper amount 3.2 million, and peripheral smear में normal morphology of RBCs. So it is termed as physiological anemia in pregnancy. Why anemia occur? Because there is an increased demand of iron. As we know, the development of the baby needs our blood, calcium, everything from mother. So there is an increased demand of iron, diminished intake due to nausea, vomiting, perverted taste. Patient is not taking proper nutrition. Diminished absorption due to pressure effect of uterus. The absorption at duodenum is also affected. And pre-pregnancy insufficient stage of iron. Pre-pregnancy में ही anemia है तो it will worsen in the pregnancy. Now we are mainly discussing the iron deficiency anemia that is mostly seen in 70% of the pregnant ladies. How they present to you? Simple. Lethargy, weakness, fatigue, anorexia, indigestion, severe anemia it leads to the dyspnea, palpitation, giddiness and the leg cramps. So these are the presentation of iron deficiency anemia. आपको कैसे पता चलेगा whether she is anemic or not? Simple, pallor. Look in the eyes, check the tongue, check the nails. नेल्स आप कंपेयर करोगे आपके और उनके, वाइट नेल दिखेगा. सी द टंग एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा. पेशेंट मे हैव ग्लोसाइटिस मीन्स मुंह आ गया बोलते हैं ना, स्टोमेटाइटिस. इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ एंगल इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस. एंड इडिमा ऑफ द लेग ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी. So these are very common: pallor, glossitis, stomatitis and edema of the leg. How will you investigate? Simple. CBC is very common, but a long factor you have to rule out. So CBC, peripheral smear and HB electrophoresis. Now degree of anemia. How will you? Mild, moderate, severe. If HB is between 8 to 10 or 8 to 9, less than 10 is termed as a anemia. So if it is between 8 to 9, it is called mild anemia. 7 to 8, moderate. Less than 7 is severe degree of anemia. Treatment. First, the prophylactic. पहले तो हम यही ध्यान रखेंगे प्रेगनेंसी में कि प्रेग्नेंट लेडीज को एनीमिया डेवलप ही ना हो. बट इफ they not follow the instructions, not follow the proper advice, not taking the medicine properly, then anemia can happen. So first we will, at a consultant level as a doctor, we will try that anemia should not be developed in a mother, those who are taking proper advice and proper antenatal care. So counsel regarding avoid frequent childbirth. Repeated pregnancy can lead to blood loss and cause the anemia. So that should be avoided. Minimum interval between pregnancy should be 2 years. This is most important part to counsel the patient as well as her relatives and husband. Minimum gap should be at least 2 years because those the blood loss she had bear in the pregnancy or in abortion, they takes a time to replenish. So proper gap interval should be more than 2 years between two pregnancy. And as we all know, it's a
hemodilution stage, so supplement the iron. Supplementation dose is 60 milligram elemented iron. So, but the tablet containing in the markets are 100 milligram, 200 milligram. So, one tablet of ferrous sulfate, 200 milligram की जो ferrous sulfate की tablet आती है, that contains 60 milligram elemented iron. With folic acid you should give. नो टी विद इन 1 आवर. मैंने बोला कि टैनिन प्रेजेंट इन द टी इंटरफियर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. सो नॉट along with tea and snacks, it is always taken after meal. So I am always prefer to give iron after meal, after in the afternoon, and calcium at a bed time with cup of milk. So it is the ideal time, and folic acid if associated with iron then nothing required, if not then in the morning. So हमने देखा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में you will supplement up to 12 weeks folic acid 5 milligram tablet, then after 12 weeks supplementation with iron, but most of the iron tablets are now combined with folic acid, so you don't require to give folic acid separately. So give the iron folic acid tablet from 12 weeks onwards up to the 9 months, and even I am recommended to give up to post 3 months of delivery. So usually it should be given up to post delivery 3 months. Iron rich diet. Advise counsel the iron rich diet. Which are the iron rich diet? All green leafy vegetables like coriander, methi ki bhaji, all bhajis, methi ki bhaji, spinach bhaji, tandar cha, everything, all green types of vegetables are high rich source of iron. Also advise to take a deshi god with fist of chana, is a rich and good combination for supplementation of iron and calcium in pregnancy. So in the evening snack or in the mid morning snack, always advise to take a good with chana, fist of chana is a good source of iron. Early detection of falling HB. So that's why we had learned in the antenatal visits which investigation. First, as soon as patient came, always carry out investigation, so you should know whether her HB level. Again repeated 22 weeks, again repeated 28 weeks, and again repeated 36 weeks. सो आप अर्ली डिटेक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कर सकते हो और यू कैन मैनेज अकॉर्डिंगली. देन द क्योरेटिव मीन्स ट्रीटमेंट. आपने बहुत ध्यान रखा बट पेशेंट हैड नॉट टेकन मेडिसिन प्रॉपरली, देन ट्रीट द अनीमिया. हाई डोज ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन is needed, but iron supplementation are very intolerable. So ideally 60 milligram elemental dose in pregnancy in supplementation required, but most of the tablets are 100 milligram ferrous sulfates are available, so only use as a supplementation one tablet only give 30 milligram elemented iron. So प्रोफाइलेक्टिक में ही आपको 2 टैबलेट लेनी चाहिए आयरन की, but nobody can tolerate because it causes more GI disturbances. So in the market, various preparations are available. First is ferrous sulfate and ferrous fumarate, that is available from the government side. Or patient those who cannot afford, you can prescribe ferrous sulfate or ferrous fumarate. It's a good drug, but acidity problem and GI disturbances are higher with ferrous sulfate or ferrous fumarate.
100 milligram tablets are available in the market. Like a capsule Otrin, very common as we all know. Tonofolic Z, very rich, very common tablets are available in the market. So those contain ferrous sulfate and ferrous fumarate. अगर पेशेंट को टॉलरेट नहीं हो रहा है, जीआई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो स्विच ओवर टू फेरस एस्कॉर्बेट. जो इस आयन में एक्सटी लिखा हुआ होता है दैट ऑल आर एस्कॉर्बेट. ऑट्रिन एक्सटी आ गई, प्लेन ऑट्रिन में फेरस फ्यूमारेट है, अभी आ गई है ऑट्रिन एक्सटी. सो वहाँ जहाँ पे भी एक्सटी लिखा है, दो होल आर फेरस एस्कॉर्बेट. 100 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, बट ऐसा बोलते हैं कि उसका एब्जॉर्प्शन पार्ट इज वेरी गुड. सो it is costly, tolerance good, and absorption also good. So it is widely prescribed ion all over in the market. That is ferrous ascorbate. बहुत फसी पेशेंट है, टॉलरेंस थोड़ा भी नहीं है, बेयर कर सकता है, तो उसमें भी प्रिस्क्राइब फेरस एमोनियम साइट्रेट. That is Dex orange tablet available in the market. Here tolerance good but absorption is less. बट जो पेशेंट ले ही नहीं सकता है उससे बेटर है कि कुछ तो ले. तो डेक्स ऑरेंज टैबलेट कंटेन फेरस एमोनियम साइट्रेट. अगर पेशेंट रेगुलर आयरन टैबलेट्स लेता है तो उसका HB ग्रेजुअली इट शुड बी राइज. सो रीवैल्यूएट आफ्टर 3 weeks. आइडियली 1 gram HB rise by oral preparation takes at least minimum 3 weeks. अगर 3 weeks वो रेगुलर लेगा तो उसका लेवल 1 ग्राम जितना बढ़ता है. सो इवेल्युएशन रीवैल्यूएशन आफ्टर 3 weeks. नाउ द पैरेंट्रल. दोस पैरेंट्रल आप किस में दोगे, पहले तो वो पता होना चाहिए. दोस हु आर वेरी रिलैक्चुएंट टू टेक द ओरल टैबलेट्स, और सपोज जिसका HB बहुत कम है, सिवियर एनीमिक है, 7 है, 8 है HB, और आपने डिटेक्ट कर लिया 16 या 20 वीक्स पे, तो इट इज़ बेटर टू गिव द पैरेंट्रल आयन. बिकॉज मैंने बोला कि ओरल आयन टेक्स अ टाइम. 1 महीने में 1 ग्राम बढ़ता है इफ शी इज टेकन रेगुलर इन रेगुलर अमाउंट डोज. तो माइल्ड एनीमिया तक ओरल प्रिपरेशन इज ओके, बट in moderate cases or in severe case detected in early pregnancy, treat with parenteral iron. पहले आपने सुना होगा या पता नहीं, मुझे आपको पता है कि नहीं, कि जीपी जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं ना, वो लोग आयन सुक्रोज पेशेंट को नहीं देते हैं, बिकॉज जो पहले वाले इंजेक्शन आते थे उससे बहुत रिएक्शंस आते थे पेशेंट में. So that's why they are afraid to give the parenteral preparation in OPD base. But now newer preparations are very safe. Very, very rare chance of complication. So they are iron sucrose injection. Very safe injection. अगर आपको सेफली देना है तो ओरोफर एस स्टैंडर्ड कंपनी का इसमें देने का, कोई किसी का भी नहीं देने का, जिस पे आपको ट्रस्ट है. सपोज मैं 10 साल से ओरोफर ऐसे यूज़ कर रही हूँ, स्टैंडर्ड ड्रग एमक्योर कंपनी की, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज आती है पर उसकी ट्रस्टेबिलिटी वी कांट मेजर. और जिसमें ऐसा प्रॉब्लम होता है, रिएक्शन का डाउट होता है, तो बेटर टू गिव स्टैंडर्ड कंपनी इंजेक्शन. ओरोफर एस 100 मिलीग्राम का आता है, IV इन 100 ml NS ओवर 10 minutes. ये पता होना चाहिए कैसे देना होता है. 100 मिलीग्राम का वायल आएगा, 100 ml NS की बॉटल लेने की, 10 मिनट्स में चढ़ा देने की. इसका 1000 मिलीग्राम वाला प्रिपरेशन भी आता है ओरोफरेस का, उसको लोडिंग डोज बोलते हैं. तो एक इतने सारे इंजेक्शन नहीं देने पड़े, एक में ही चलेगा. बट आई नॉट ट्राइड दैट प्रिपरेशन because of afraiding of complication.
सो जब भी मुझे देना होता है तो आई एम यूजुअली गिव 100 मिलीग्राम ओरोफेरेस in 100 ml NS over 10 minutes. 5 injections twice a week. 15 दिन में HB इसमें बढ़ता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इफ प्रेगनेंसी फुल टर्म अगर 36 वीक्स है 37 वीक है तो उसमें पेरेंट्रल आयन ऑल्सो विल नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज उसको इवेल्युएट उसको बढ़ने में ही 15-20 दिन लगते हैं. पर अगर वो टर्म है तो वहाँ तक अप टू 36 वीक्स यू कैन ट्राई पेरेंट्रल. बट बियॉन्ड 36 वीक्स एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन. 34-36 वीक्स से ज़्यादा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन. Folic acid always should give when there is iron deficiency anemia because it helps in iron absorption. B12 deficiency along associated है तो give B12 IM injection also. So this completes whole anemia. Then PIH. अभी जो भी डाउट है वो क्लियर कर लीजिए. Then we will move to the PIH. हाँ बोलिए. सप्लीमेंटेशन देने का दैट कम्स इन द प्रिवेंटेटिव पार्ट. तो सप्लीमेंटेशन तो देखिए आप हम लोग जो भी प्रेगनेंसी है ना तो उसको हम मान के ही चलते हैं कि इसको फिजियोलॉजिकल एनीमिया. तो हमने आपने याद होगा तो मैंने बोला था कि मैंने एक स्टडी बताई थी कि कब एक ऐसा पेशेंट है कि जिसको हमने पूरा एनीमिया नहीं है. पेशेंट का HB पहली बार आया ना तो 11 ग्राम है. ठीक है. तो एनीमिया नहीं है पर ऐसे पेशेंट को वो अगर आयन नहीं लेता है 9 महीने तक तो पूरे 9 मंथ्स पे उसका HB कितना हो जाएगा 2% कम हो जाएगा. वो 9 ग्राम में आ जाएगा. तो इट विल फॉल इनटू द एनीमिया पैथोलॉजिकल एनीमिया. तो हमारा ऐसा काम होना चाहिए कि एज ए कंसल्टेंट पेशेंट शुड नॉट फॉल इनटू द पैथोलॉजिकल एनीमिया. फिजियोलॉजिकल एनीमिया तो होने वाला है ही. तो हम ऐसा करते हैं कि उसको सप्लीमेंटेशन देते हैं तो वो 10 से बिलो इसका HB नहीं जाना चाहिए. दैट इज अवर मेन एम. तो अगर पेशेंट को फिजियोलॉजिकल एनीमिया है एनीमिया मीन्स मोर देन 10 HB होना चाहिए तो हमें सप्लीमेंटेशन तो सबको देना है बिकॉज इंडियन लेडीज में 11 या 12 HB तो मैक्सिमम होता है. उससे ज़्यादा तो होता नहीं है किसी का. तो अगर वो 12 ग्राम वाला भी क्या होगा कि वो नहीं लेगा सप्लीमेंटेशन तो फुल टर्म पे उसका HB 10 हो जाएगा. तो दे ऑल्सो फॉल इनटू द अनीमिया. पर अगर हम साथ में आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं तो क्या होगा उसका HB 12 का 12 मेंटेन रहेगा. आया समझ में मैं क्या बोल रही हूँ. हमको नहीं देखिए पहले 3 मंथ्स तक अप टू 12 वीक्स तो मैंने आपको पहले से क्लियर किया है कि कुछ नहीं देना है. ठीक है. फर्स्ट 12 वीक्स तक तो ओनली वी विल गिव द फॉलिक एसिड और मॉर्निंग सिकनेस है तो डॉक्सिलामाइन पायरिडॉक्सिन और कुछ अबॉर्शन का डर है प्रेशियस प्रेगनेंसी है तो गिव द सस्टेन इंजेक्शन सस्टेन प्रोजेस्ट्रॉन देंगे. दूसरा हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ नहीं देंगे. Iron calcium supplementation should start after 12 weeks up to full term. इवन पोस्ट डिलीवरी के भी 3 महीने तक देते हैं. तो 3 मंथ से स्टार्ट करेंगे. गिव इट अप टू पोस्ट 3 मंथ्स ऑफ डिलीवरी. ठीक है. दूसरा के जब अगर 12 वीक्स के बाद मोस्टली सारे पेशेंट को हम आयरन पे स्विच ओवर कर देते हैं पर कई पेशेंट को परसिस्टेंट वॉमिटिंग रहती है तो उसमें 1 महीना लेट कर देने का. अभी पेशेंट को बिकॉज मैंने बोला कि आप कुछ भी आयरन प्रिपरेशन दोगे थोड़ा तो उसको वॉमिटिंग या GI डिस्टर्बेंस रहेगा. तो जिसको बहुत वॉमिटिंग का कंप्लेन है तो उसको 4 मंथ से स्टार्ट करेंगे. जिसको नहीं है उसको 12 वीक्स ऑनवर्ड 4 मंथ यानी 12 वीक्स के बाद का जो सेकंड ट्राइमेस्टर से हम वी विल स्टार्ट नॉर्मली आयरन.
पर जिसको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है उसको 16 वीक से स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मल सप्लीमेंटेशन में हम 1 टैबलेट देते हैं। अगर सिवियर एनीमिया है तो 2 टैबलेट देनी पड़ेगी। आया समझ में? एनी अदर है क्वेश्चन? क्लियर योर डाउट्स? तो आगे चलते हैं। सबको आ गया, आई थिंक सबको समझ में आ गया एनीमिया इन प्रेगनेंसी क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे। हाँ, नाउ द हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, PIH. सो देर आर 2 डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। एक है कि जो प्रेगनेंसी के कारण ब्लड प्रेशर डेवलप होता है, दैट इज टर्म्ड एज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एंड वन इज क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन यानी इट इज अ कंडीशन वेयर अ हाई ब्लड प्रेशर प्रेजेंट इन अ सिंस प्री प्रेग्नेंट स्टेज। प्री प्रेगनेंसी में ही उसको ब्लड प्रेशर हाई था और अभी भी हाई है। और PIH मीन्स जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मीन्स अभी अभी आफ्टर 12 वीक्स, आफ्टर 20 वीक्स डायग्नोस हुआ है। तो सी हियर कंडीशन। पहले तो हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे? ये आइडियल गाइडलाइंस है कि जिसका ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 मेजर्ड एटलीस्ट 2 times एट अ 6 hour इंटरवल, प्रोटीन्यूरिया अलोंग प्रेजेंट है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, व्हाट इज जेस्टेशनल? ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 डिटेक्टेड फर्स्ट टाइम इन प्रेगनेंसी आफ्टर 20 weeks without proteinuria are called gestational hypertension. फिर उसका मैंने बोला था कि उसका थोड़ा सिवियर फॉर्म जेस्टेशनल हाइपरटेंशन विथ प्रोटीन्यूरिया आर टर्म्ड एज प्री-एक्लेम्शिया, एंड व्हेन इट इज एसोसिएटेड विथ कन्वर्जन, सीजर आने लगते हैं, तो इट इज कॉल्ड एक्लेम्शिया। आगे हेलोप वेलोप आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना यू शुड रिमेंबर, जेस्टेशनल मीन्स ओनली ब्लड प्रेशर एलिवेटेड, बट आफ्टर 20 weeks उसके साथ प्रोटीन्यूरिया होता है, तो इट इज कॉल्ड प्री एक्लेम्शिया। और अगर उसको सीजर आती है तो इट इज कॉल्ड एक्लेम्शिया। और क्रोनिक में तो प्री प्रेगनेंसी उसको ब्लड प्रेशर हाई है। सो प्री एक्लेम्शिया मैंने बोला मोर देन 140/90 along with proteinuria after 20 weeks with previous normotensive and non-proteinuric woman। पहले सब नॉर्मल था, पर एकदम से 20 weeks के बाद ब्लड प्रेशर हाई हुआ एंड यूरिन में प्रोटीन डिटेक्ट हुआ। अगर यूरिन में प्रोटीन डिटेक्ट नहीं होता है, ओनली ब्लड प्रेशर राइज है, देन इट इज कॉल्ड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इन शॉर्ट रिमेंबर देर आर 3 stages। फर्स्ट जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मोर देन 20 weeks के बाद ही हाइपरटेंशन डिटेक्ट होगा। इफ इट एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्यूरिया तो उसको बोलेंगे प्री एक्लेम्प्टिक कंडीशन, और उसमें सीजर ऐड हुआ तो बोलेंगे एक्लेम्शिया। क्लियर हुआ? व्हाट इज PIH के 3 ग्रेड? ये ग्रेड ही है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया एंड द एक्लेम्शिया। डायग्नोस कैसे करोगे आप? ब्लड प्रेशर हाई होगा, पिटिंग एडिमा, हियर यू शुड डिफरेंशिएट बिटवीन फिजियोलॉजिकल एडिमा एंड द पैथोलॉजिकल एडिमा। ड्यू टू PIH का जो एडिमा होगा, दैट इज पिटिंग एडिमा ओवर एंकल एंड नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट, एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड वेट गेन, बहुत ज्यादा वेट गेन होगा, नॉर्मल से ज्यादा, मोर देन 2 kg इन अ मंथ, एंड प्रोटीन्यूरिया भी साथ में होगा।
क्लियर हुआ? PIH का समझ में आया? देन आई मूव टू द ट्रीटमेंट पार्ट. देन द ट्रीटमेंट सिंपल, बिकॉज आप अपने लेवल पे PIH तक ही ट्रीट करोगे, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन लेवल पे. प्री एक्लेम्पसिया तो इवन वी आर नॉट ट्रीटिंग, वी आर ऑल्सो सेंडिंग टू द हायर सेंटर, बिकॉज व्हाट हैपन्स, प्री एक्लेम्पसिया जब पेशेंट को होता है तो दे एनी टाइम कन्वर्ट इनटू द एक्लेम्पसिया, सीजर आती है एंड इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. सो ऐसे केस में टर्शरी सेंटर पे ही भेजना ज़्यादा है. बट एज ए आप OPD लेवल पे जनरल प्रैक्टिशनर के हिसाब से यू कैन प्रिस्क्राइब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. बट आप जो नॉन प्रेग्नेंट में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करते हो उससे ये ड्रग बहुत डिफरेंट है. वो सेम ड्रग आप प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज प्रेगनेंसी में प्लेजेंटल बैरियर होता है. वो मदर में जो भी लेता है वो वहाँ से बेबी में आता है. तो आपको बहुत ही जो सेफ ड्रग है दैट ओनली यूज्ड इन प्रेगनेंसी. सो उसके लिए जब भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 डिटेक्ट होता है एट अ 6 आवर इंटरवल, 2 बार मैंने हम पेशेंट का पहली बार ब्लड प्रेशर हाई आया तो आई विल आस्क देम टू कम इन द इवनिंग. सुबह में आया तो शाम को बुलाएंगे, शाम को आया तो सुबह में बुलाएंगे. दोनों टाइम पे अगर उसका ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 आता है देन आई विल एडवाइज देम medication. Most common prescribed medication is tablet labetalol. Tablet labetalol 100 milligram twice a day. It should be given throughout pregnancy as well as post pregnancy 2 महीने तक. फिर उसको धीरे धीरे उसका ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे, बिकॉज व्हाट हैपन्स मोस्टली जो PIH है वो तो प्लेजेंटा की वजह से ही होता है. तो जैसे आप प्लेजेंटा रिमूव करोगे धीरे धीरे वो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा. सो बट 1.5 महीने तक कंटिन्यू रखो सेम डोज, फिर चेकअप करके धीरे धीरे हम टैबलेट बंद कर सकते हैं. तो मोस्टली प्रिस्क्राइब ड्रग इज कॉल्ड लेबेटेलॉल, लाबियाडोल आती है, लेबेटेलॉल. सेकंड इज मिथाइलडोपा 250 मिलीग्राम 1 QDS और 1 TDS. थर्ड इज निफेडिपिन, निकार्डिया, बट उससे IUGR के प्रॉब्लम्स होते हैं तो इतना प्रिफरेबल नहीं है. बट जहाँ पे लेबेटेलॉल और वो सब महंगी दवाई होती है, जहाँ पे थोड़ा कॉस्ट का प्रॉब्लम हो देन यू कैन यूज द निफेडिपिन. एंड हाइड्रोलाइजिन इज वेरी रेयरली यूज्ड. सो मोस्ट कॉमन यूज्ड ड्रग आर लेबेटेलॉल एंड मिथाइलडोपा. अगर थोड़ा सस्ता करना है तो निफेडिपिन और लास्ट इज हाइड्रोलाइजिन. रेस्ट एंड PIH में ऑलवेज केयर फॉर IUGR, because what happens due to PIH there is a constriction in the vessels. So मदर में से बेबी का जो सप्लाई है वो बहुत कम होता जाएगा. सो पेशेंट PIH का पेशेंट मोस्ट ऑफ द पेशेंट के बेबी है दैट लीड्स टू द इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन. उसका ग्रोथ स्टेटिक हो जाएगा और मे कैन लीड्स टू द IUD, intrauterine death also. So that's why in PIH always have to look for IUGR, that we will look for the serial ultrasonography associated with Doppler. Doppler का रोल PIH में बहुत इम्पोर्टेंस है. जब भी जिसको हमें डाउट लगता हो तो उसका हम 22 वीक्स पे डॉपलर करके, मैंने बोला था कि वेन एवर देयर इज बायलेटरल यूट्राइन आर्टरी शोज डायस्टोलिक नॉच,
मीन्स दैट पेशेंट इन फ्यूचर गोइंग टू डेवलप PIH, ऐसा होता है. सो आप सोनोग्राफी में देखोगे तो वो लोग लिखेंगे ऐसा कि bilateral uterine artery showing persistent diastolic notch, so always look for development of the PIH in this patient. So इसके लिए ऐसे देखेंगे. अभी खत्म, ठीक है. तो इसमें किसी को डाउट PIH में? हाँ बोलिए. सी, पहले तो PIH की कंडीशन क्या है? PIH की कंडीशन ये है कि 20 वीक्स के बाद आएगा, ठीक है ना. 20 वीक्स के बाद आएगा, उसको ही PIH बोलेंगे. अगर आपका क्वेश्चन सही है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिटेक्ट हुआ तो क्या करेंगे? अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिटेक्ट हुआ तो ट्रीटमेंट तो लाबियाडोल या मिथाइल डोपाई दोगे, बट इट इज मेनली ड्यू टू क्रॉनिक हाइपरटेंशन, तो उसकी आगे से ही कोई दवाई शुरू ही होगी मोस्टली. तो या उसको पता नहीं है प्री प्रेग्नेंट स्टेट में कि उसको ब्लड प्रेशर है, तो लैब उसमें आप जो एटेनॉल और अलग अलग जो बीटा ब्लॉकर्स और वो सब देते हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, वो यहाँ पे हम नहीं दे सकते. यहाँ पे हमें कंपलसरी लैबेटेलोल या मिथाइल डोपाई देना है. तो देनी तो यही है, बट you should have to in file you should have to different written it is a chronic hypertensive patient, not a PIH patient. समझ में आया? PIH हम उसी को बोलेंगे कि जिसका ब्लड प्रेशर 20 वीक्स के बाद आया है. तो उसमें क्या है ना कि इट इज मेनली ड्यू टू प्रेगनेंसी, प्लेजेंटा की वजह से आया है. तो ऐसे केसेस में पोस्ट प्रेगनेंसी उसका ब्लड प्रेशर मोस्टली चला जाएगा. हाँ 9 मंथ्स के बाद, हाँ 1.5 महीने अप टू 2 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी 2 मंथ्स तक सब नॉर्मल हो जाता है. बट अगर बट अगर पेशेंट को क्रोनिक हाइपरटेंशन है तो वो प्रेगनेंसी के बाद ब्लड प्रेशर नहीं जाएगा. उसको फिर 2 महीने के बाद उसको फिजिशियन को दिखा के रूटीन जो ब्लड प्रेशर की गोली है वो लेनी पड़ेगी. पर प्रेगनेंसी हाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी दे सकते हो लाबियाडोल. मतलब उनकी पुरानी कोई चल रही है वो इसमें चेंज करनी पड़ेगी. हाँ 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 डेफिनेटली, हाँ चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो बीटा ब्लॉकर और वो सब दवाई लेते हैं, तो उससे तो एनोमोलस चाइल्ड आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. तो उसको स्टॉप करा के लाबियाडोल आपको दे. प्रेगनेंसी में तो इसके अलावा कोई लाबियाडोल दे सकते हो, मिथाइल डोपाई या निफेडिपिन. निफेडिपिन का एक ही है, निफेडिपिन से IUGR होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है.
पर सरकारी में तो निफेडिपिन ही मिलती है, गवर्नमेंट में वो लोग निकार्डिया ही देंगे, बट प्राइवेट में हम लोग ये देते हैं। तो इन तीनों में से आइदर यू यूज लेबियाडोल, आइदर यू यूज मिथाइल डोपा और यूज निकार्डिया निफेडिपिन, इन तीन में से एक ही आपको देनी है। हाँ, ऐसा होता है कि कई बार लेबेटोलॉल मैंने यूज़ किया, ठीक है, 100 मिलीग्राम 1 बीडी, फिर उसका मैक्सिमम डोज 1 TDS तक दे सकते हैं। उससे भी कई बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, तो 2 कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो, मिथाइल डोपा विथ लाबियाडोल या लाबियाडोल विथ निफेडिपिन। सो मैक्सिमम 2 कॉम्बिनेशन यू कैन गिव, नॉट मोर देन 2 कॉम्बिनेशन। फिर भी उसका कंट्रोल नहीं होता है तो आपको आगे रिफर कर देने का पेशेंट। इवन मेरे से नहीं होगा तो भी मैं भी रिफर ही करूँगी उसको, बिकॉज दैट मीन्स कि बहुत सीरियस केस का है, उसको इतनी मेडिसिन के बाद भी नहीं होता है। तो मैक्सिमम डोज के मेडिसिन आप 2 कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, लाबियाडोल विथ मिथाइल डोपा या लाबियाडोल विथ निकार्डिया। आया समझ में? मैंने एक पेशेंट देखा था मैम, हाँ। हॉस्पिटल में। हाँ। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, पोस्ट डिलीवरी 170/100 जैसा बीपी था, और फिर पोस्ट डिलीवरी आई थिंक 5-6 घंटे के बाद फिर उनको सीजर्स आए, तो फिर उनको आगे रिफर किया था और फिर ट्रीटमेंट। दैट इज एक्लेम्शिया वंस। हाँ, तो 170-100 था ना, दैट मीन्स दैट पेशेंट वॉज इन प्री एक्लेम्टिक स्टेज। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ओनली जेस्टेशनल हाइपरटेंशन तक ही आपको तो ट्रीट करना है। इवन मेरे पास प्री एक्लेम्शिया आता है तो मैं क्या करती हूँ, पेशेंट को बोलती हूँ कि आप सिजेरियन करा दो, आपकी डिलीवरी करा दूँ, वरना आपको मैं रिफ़र करूँगी। बिकॉज जैसे ही प्री एक्लेम्शिया आएगा दैट मीन्स वो कभी भी एक्लेम्टिक स्टेज में जाएगा, तो उसको वो नहीं जाने देने के लिए उसकी डिलीवरी करानी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, सरकारी में और वो सर्टी हॉस्पिटल और वो सब में वो लोग रिस्क ले सकते हैं कि कभी भी कुछ भी हुआ तो दे आर रेडी, बट इन अ प्राइवेट प्रैक्टिस वी कांट टेक सच टाइप ऑफ रिस्क। इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, बिकॉज सीजर यानी क्या, अंदर के ब्रेन की ब्लड वेसल्स में का फूलना, तो उसमें कभी भी ब्रेन इन्फेक्ट होकर पेशेंट की डेथ हो सकती है, इतनी सीरियस कंडीशन है। तो वहाँ वो उसके लिए हम आंसरेबल नहीं है, तो हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन तक ही पेशेंट को ट्रीट करेंगे। नहीं होता है, प्री एक्लेम्शिया आया तो मैं पेशेंट को इवन 28 वीक है, बेबी सर्वाइवेबल नहीं है, तो भी डिलीवरी मदर की जान के लिए, मदर को बचाने के लिए डिलीवरी करानी पड़ती है कई केसेस में। फिर उस टाइम पे आप पेशेंट के रिलेटिव्स को बोल सकते हो कि इसमें से अगर हमने नहीं किया तो बेबी तो पता नहीं जिएगा कि नहीं, बट मदर की जान को डेंजरस है। ऐसी कंडीशन भी कई केसेस में देखने को मिलती है। तो अपने लेवल पे यू ओनली ट्रीट अप टू PIH लेवल, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जैसे ही यूरिन में प्रोटीन यूरिया आता है, रिफर द पेशेंट, बिकॉज ऐसे रूटीनली गायनिक पेशेंट या नॉन प्रेगनेंसी में प्रोटीन यूरिया का सिग्निफिकेंस नहीं है इतना, बट प्रेगनेंसी में तो प्रोटीन यूरिया आता है। चेक, डबल चेक, ऑलवेज चेक, डबल चेक करने का, क्योंकि कई बार लेबोरेटरी की भी मिस्टेक होती है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है एंड प्रोटीन यूरिया आता है, दैट मीन्स योर ड्यूटी इज कंप्लीट। आपको उसको रिफर करने का, कुछ नहीं करने का उस पेशेंट का। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका कब चेंजेस होते हैं। तो इसीलिए मेक अ हैबिट कि CBC RBS यूरिन RM हम 22 वीक्स पे रिपीट करते हैं, 28 वीक्स पे करते हैं, और अगेन फुल टर्म पे करेंगे 3 बार रिपीट। पहला तो हुआ ही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हमने पूरा स्क्रीनिंग किया, बट अगेन रिपीटेड 22 वीक्स, 28 वीक्स एंड 36 वीक्स। तो कहीं पे कहीं होगा तो पकड़ा ही जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि पेशेंट रिपोर्ट्स नहीं कराते और 36 वीक्स पे पता चलता है
कि इट इज़ इन सिवियर केस ऑफ प्री एक्लेम्शिया, तो उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पेशेंट ने कुछ दवाई नहीं ली, कुछ किया ही नहीं, तो आप क्या करोगे? अंडरस्टूड? यस मैम। दूसरा किसी को क्वेश्चन आंसर? कल है ना, कल प्रीटम एंड मैं देखती हूँ कितनी स्लाइड्स होती है, प्रीटम एंड प्यूरपेरियम दोनों कल हो जाता है तो कल दोनों में ले लेती हूँ। फिर मंडे को तो आपको कहीं कुछ डाउट होगा, उसी के लिए आप बोलना कि डाउट है तो मैं लेक्चर लूँगी, वरना फिर कल ख़त्म हो जाएगा। तो कल थोड़ा ज़्यादा चलेगा, 3 to 4:30 जितना चलेगा, तो कल कोर्स ख़त्म हो जाएगा। और मंडे को आपको डाउट है, कुछ केस प्रेजेंट करना है, तो देन वी विल मीट ऑन द मंडे। सो कल आप सब टाइम दे सकते हो तो कल दोनों में ले लूँ, या वरना मंडे लेना हो तो मंडे। दो टॉपिक्स, हाँ ना। तो कल प्रीटम एंड प्यूरपेरियम मैं देखती हूँ कि कितना है स्लाइड, सब ज़्यादा होगा तो मंडे एक दिन ले लेंगे, और नहीं होगा तो कल मैं ख़त्म करूँगी। ठीक है? ओके, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो लिख के रखिए, कुछ पूछेंगे तो आपको आएगा, ऐसे सुनने से नहीं आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है? तो विल मीट ऑन टुमारो 3 PM। बाय बाय ऑल।